Hello everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss geometric distribution. Okay, so without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, अब geometric distribution is a model that models the number of trials required to get the first success in a sequence of independent Bernoulli trials. मतलब ऐसा experiment which is a sequence of independent Bernoulli trials and our interest is finding the first success in the sequence. Okay, now let's understand what is Bernoulli trial. Bernoulli trial is a single experiment where there are two outcomes, one is success, another is failure. ठीक है, अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट विच इज़ ए sequence of independent Bernoulli trials. ठीक है, sequence of independent Bernoulli trials and our interest is first success. हम लोग का इंटरेस्ट है फर्स्ट सक्सेस को ऑब्जर्व करना. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन डू वी यूज इट? व्हेन डू वी यूज़ इट? कैसा है, क्या कंडीशन होगा जब हम उस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करेंगे कि ओके इट विल फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट कंडीशन इज ईच ट्रायल इज ए बर्नौली ट्रायल. दैट मीन्स ईच ट्रायल इज आइडेंटिकल बर्नौली ट्रायल. मतलब सारा सेम बर्नौली ट्रायल्स है. ठीक है, मतलब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हर ट्रायल इज़ ए कॉइन टॉस. डाइस रोल कर रहे हैं तो हर ट्रायल इज़ ए डाइस रोल. ओके ओके. नाउ सेकंड कंडीशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी ट्रायल. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द इवेंट इज कांस्टेंट इन एवरी ट्रायल. Okay, now the next condition is trials are independent. That means एक ट्रायल में इवेंट हो रहा है, सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, will not affect the probability of success in the next events. Okay, here. Okay, so if an experiment satisfies these three conditions, then we can assume it as geometric distribution. Cool. Now here we are interested in how long until the first success will come. Okay, now let's look at some of the examples. First example is tossing a coin where our success is heads. मतलब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल. अब टू कितना ट्रायल तक करेंगे जब तक हमको हेड्स नहीं मिल जाता. सो दिस इज ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, लेट्स चेक द कंडीशन. ईच ट्रायल इज ए बर्नौली ट्रायल. यस, इट इज ए बर्नौली ट्रायल. Probability of success remains constant in every trial. Probability of heads in first trial is 1/2. Probability of heads in second trial is also 1/2. So on and so forth. Yes. So it is, and trials are independent. That means if the coin is unbiased, the trials are independent. That means the probability is not affected by the outcome of the previous trial. Okay. So this is a geometric distribution. Second example is trying passwords in any application or in the screen lock of our mobile until we get the correct password. ठीक है. So first trial, let's say probability of getting the correct password
is constant in the first trial. Okay, now second trial, third trial, fourth trial, how much trial? Up to that much trial when we will get the correct password. ठीक है, so this is also geometric, this also follows geometric distribution. Okay, third one is customer making a purchase after seeing ads. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सक्सेस क्या है? फर्स्ट परचेज. लेट्स से द कस्टमर इज़ यूजिंग स्मार्टफोन. ठीक है, अब वो फेसबुक खोला, उसको हम उसको ऐड दिखाएं. हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको हम एक प्रोडक्ट का ऐड दिखाएं. वो नहीं बाय किया, फर्स्ट ट्रायल. उसको हम फिर वो कोई और एप्लीकेशन खोला, उसमें हम फिर उसको ऐड दिखाएं, वो नहीं बाय किया. ऐसे हम उसको दिखाते गए अनटिल वो बाय कर लिया. सो दिस ऑल्सो फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, फोर्थ इज कॉलिंग माई फ्रेंड इन हिज स्मार्टफोन until he picks up. ठीक है, तो सक्सेस मेरा क्या है इसमें? इज ही पिकिंग अप द फोन. ओके, फर्स्ट टाइम कॉल किए, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पिक द फोन इज लेट्स से कांस्टेंट इन एवरी रिंग. ठीक है, until and unless he picks the phone. So this also follows geometric distribution. Cool. Now let's look at the notation. Notation simple है, x follows Poisson distribution. Oh sorry, geometric distribution है ना. x follows geometric distribution small p. ठीक है, where p is the success probability of success in each trial. ठीक है, and x represents the trial number when the first success occurs. Okay, now geometric distribution is also a discrete distribution. मतलब it will take only whole numbers. मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, टॉसिंग ए कॉइन एंड सक्सेस इज आवर हेड्स. ठीक है, अब क्या हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन 6.5th ट्रायल, इन 8.4th ट्रायल? नहीं बोल सकते हैं. क्या हम बोल सकते हैं गेटिंग द करेक्ट पासवर्ड इन 3.5th अटेम्प्ट? नहीं बोल सकते हैं. कस्टमर मेकिंग ए परचेज आफ्टर सीइंग 9.8th एड्स? नहीं बोल सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज़ वाई इट हैज़ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. क्या होता है इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन kth ट्रायल इज इक्वल टू 1 माइनस p टू द पावर k minus 1 into small p. Okay, this is the probability mass function. यहाँ पे k is यहाँ पे kth ट्रायल में हमको kth ट्रायल was the success. ठीक है, kth ट्रायल में सक्सेस मिल रहा है, मतलब first k-1 trials were failures. First k-1 trials were failures. Okay, cool. Now let's look at the shape of the distribution. Shape of
की ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज राइट स्क्यूड, मतलब देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनाए ना, ये फर्स्ट ट्रायल है, ये सेकंड ट्रायल है, ये थर्ड ट्रायल है, ये फोर्थ ट्रायल है, ये फिफ्थ ट्रायल है, ये कैपिटल पी है ना, कैपिटल पी। ओके, तो हिस्टोग्राम ना इसका कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलवेज राइट स्क्यूड मीन्स टेल इज इन द राइट साइड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एट k is equals to 1, and as you increase, as k increases, probability of x is equals to k decreases, probability decreases। ठीक है, मतलब कॉइन टॉस का एग्जांपल लेते हैं, मतलब फर्स्ट टॉस में हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, सेकेंड टॉस में हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ये है, थर्ड टॉस में हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ये है, फोर्थ टॉस में हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ये है। मतलब प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज के इंक्रीजेज। ओके, नाउ you can understand this by taking a scenario. So let's take two cases. Okay, so let's say first case is where we are tossing a coin. Okay, and in the first toss we are asking what is the probability that we will get heads in the first toss. Okay, and in another case where our interest is to find what is the probability to get heads in the 10th toss. ठीक है, now if you think first case is we are finding what is the probability of getting heads in the first trial, and in the second case we are asking okay what is the probability that we will get heads in the 10th toss. That means in the first 9 tosses we are going to see consecutive tails. ठीक है, अब एक केस ऐसा है जहाँ पे हम तुमको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट टॉस में हेड्स आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, और एक केस ऐसा है जहाँ पे हम तुमको पूछ रहे हैं कि ठीक है पहला 9 टॉस में तो कंजिक्यूटिवली टेल्स आए और 10th टॉस में हेड्स आ जाए। तो ज़्यादा लाइकली इवेंट हमको ये लग रहा है फर्स्ट केस। नहीं समझ में आया? लेट्स चेक द प्रोबेबिलिटी विथ द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड स्मॉल पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल क्या है 0.5। यहाँ पे भी स्मॉल पी क्या हो जाएगा 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन ईच केस इज 0.5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दो, 1 माइनस पी टू द पावर k माइनस 1 इंटू पी, मतलब 0.5 टू द पावर 0 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा ये 0.5। अब इसको निकालो कि 10th ट्रायल में हेड्स आने का, सक्सेस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस इज इक्वल्स टू गेटिंग हेड्स। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5 टू द पावर k माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू स्मॉल p विच इज़ 0.5। ये क्या आएगा, ये आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा 0.00098 around this value. So you can see clearly that as we have increased k to 10, the probability has decreased drastically compared to k value of 1. ठीक है, this is clear.
now let's look at a special property of geometric distribution. क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी ना? इट इज़ मेमोरीलेस मतलब द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, मतलब अभी जो हम ट्रायल करेंगे उसमें सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट फेलियर्स. ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉइन टॉस. ठीक है, हम 10 ट्रायल कर रहे हैं एंड हमको हेड्स देखने को मिला 10th ट्रायल में. ठीक है, ये टेल 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 है. लेट्स हेड्स हमको अभी तक देखने नहीं मिला. ठीक है, ये 10th ट्रायल है. तो अब ठीक है, फर्स्ट 9 ट्रायल्स में टेल्स आया है. ठीक है, तो 10th ट्रायल में हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल पी है. स्मॉल पी के बारे में हम पूछ रहे हैं, मतलब सक्सेस इन ईच ट्रायल. तो सक्सेस इन ईच ट्रायल मतलब गेटिंग हेड्स इन ईच ट्रायल, दैट इज गेटिंग हेड्स इन 10th ट्रायल इज ऑल्सो 0.5. ठीक है, हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ पहला 9 ट्रायल्स में टेल्स आया, अब 10th ट्रायल में हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना. हम ये बोल रहे हैं कि भले ही पहले का ट्रायल में कुछ भी आया हो, गेटिंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन दिस ट्रायल, इन दिस इंडिविजुअल ट्रायल इज कांस्टेंट, विल नॉट चेंज, विल नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस प्रोबेबिलिटी. मतलब पहले अगर 9 टेल्स आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी 0.6 हो गया या फिर 0.8 हो गया. ये 0.5 ही रहेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ मेमोरीलेस प्रॉपर्टी. सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है विच इज़ मेमोरीलेस. ओके, नाउ अब एक नॉन मेमोरीलेस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं. ठीक है, बैटरी लाइफ को लेट्स से एज्यूम करते हैं. बैटरी लाइफ, इसका जो मैन्युफैक्चरर है ना वो बोला कि 3 years वारंटी है और गारंटी है, कुछ भी ले लो बैटरी का. ठीक है, तो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, इसका फर्स्ट ईयर में फेल करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम होगा, लेट्स से 0.001 है. ठीक है, अब सेकंड केस, ये फर्स्ट ईयर टिक गया बैटरी, ये बैटरी सेकंड ईयर भी टिक गया, ये बैटरी थर्ड ईयर भी टिक गया, अब 4th ईयर आ गया. अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बैटरी फेलिंग इन दिस ईयर. तो इसका जो स्मॉल पी है, गेटिंग सक्सेस इन दिस ट्रायल, ये बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि 3 साल बैटरी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है. तो अब बैटरी का फेल होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा. हो सकता है 0.1 हो सकता है 0.2 हो सकता है 0.8 हो, लेकिन इसके मुकाबले तो ज़्यादा ना होगा. तो ये नॉन मेमोरीलेस सिचुएशन है. ओके, सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड each and everything that we have discussed today, and if you have any doubt you can leave a comment and we will meet in the next video. So yeah, thank you.